Good morning students, welcome to Rashtriya classes. In our previous video I have discussed about the animal husbandry and the subtopic that we already discussed in previous video, that is the cattle farming and poultry farming. In this video we will discuss about fish productions, fish farming and beekeeping. So let's start. First is the fish productions. Now what is this fish production? As you know, the fish is the cheapest source of proteins. It is an important aquatic food which is rich in proteins. It is the proper rearing and caring of the fishes. Fish production क्या है? Proper rear, how to rear the fishes and their proper carings. And the fish liver oil, that is the rich source of vitamin A and B. Next, we will start about the fisheries are set up. Different fisheries are set up. Now what are these fisheries? The fisheries are the setup that deals with the capturing, preservation, exploitations and utilization of the fishes on the basis depending upon the mode of obtaining the fishes. कि फिश को ऑब्टेन करने के कैप्चरिंग के डिफरेंट मेथड्स में नाउ देर आर टू टाइप ऑफ द फिशरीज. One is the culture fishery and second is the capture fishery and culture fishery. As the word indicate, capture fishery and culture. Capture fishery, what is this capture fishery? Capture fishery, in capture fishery it is the fish is caught from the natural waters. कैप्चर फिशरी में क्या होता है कि जो फिश है, फिश को हम कॉट करते हैं कहाँ से? जो नेचुरल सोर्सेज हैं, फ्रॉम द सी, फ्रॉम द रिवर्स, that are the included in the capture fisheries, and there are the different modern technologies are used in this process for capturing the fishes. Second is the culture fishery. It is the cultivation, rearing and harvesting of the fish. It is also as a pisciculture. इसमें कल्चर फिशरी में क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक एरियाज में डिफरेंट वेराइटीज़ को कल्टीवेट करते हैं, उनकी रियरिंग करते हैं और हार्वेस्टिंग करते हैं. इसीलिए इसको हमने एक नई टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए, इसको बोलते हैं हम pisciculture, मीन्स रियरिंग ऑफ द फिश, दैट इज pisciculture. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेज कि कौन से सोर्सेज में है, मैराइन फिशरीज हैं एंड सेकंड इज द इनलैंड फिशरीज. सो लेट्स टॉक अबाउट marine fisheries. The marine fishing include the fish production in coastal lines and deep seas. Marine fisheries में फिश को हम कॉट करते हैं कहाँ से? जो कोस्ट लाइन से हैं, जो समुद्र तट के एरिया हैं, इन दैट एरियाज एंड द डीप सी से कैप्चरिंग कॉट ऑफ द फिश. Some of the marine fishes, now varieties of the marine fishes are pomfrets, marcars, tuna, sardines and Bombay duck. These are the different varieties of the marine fisheries. And what are the methods, what type of the methods, modern technologies are used for capturing these fishes? By using satellite, region of high fish populations in the sea can be found, that is echo sounders are also used. कि by using satellites, जो echo sounders हैं, echo sounders से क्या होगा? इन दिस वे साउंड्स जो है प्रोड्यूस होगी. जब वो साउंड वापस आती है तो उसमें क्या होता है? डिफरेंट मीन्स ह्यूज वेराइटीज ऑफ फिशेस कम विद दैट साउंड एंड दे कैन बी इजीली कैप्चर्ड, और उनको हम पकड़ सकते हैं. सेकेंड इज द इनलैंड फिशरीज. नाउ व्हाट इज दिस इनलैंड फिशरीज? इनलैंड फिशरी में हम क्या करते हैं? दे विल टेक अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड वेयर डिफरेंट स्पीसीज 5 to 6 or more than 6 varieties species of fishes are cultivated. That is the inland fisheries. कि inland fisheries में हम क्या करते हैं? स्मॉल एरिया में, इसको अगर हम कहेंगे तो ये किस में इंक्लूड होता है? कल्चर फिशरीज में. स्मॉल एरियाज में डिफरेंट वेराइटीज़ हम फिशेस की 5 to 6 वेराइटीज़ हम एक पर्टिकुलर एरियाज में
कल्चर्स करते हैं, दैट इज नोन एज द इनलैंड फिशरी। इनलैंड fish farming can be done where a combination of 5 to 6 species are used in a single pond। एक सिंगल पॉन्ड होगा जिसमें 5 to 6 वेराइटीज हम यूज़ कर सकते हैं, उसको कल्चर कर सकते हैं। वो डिफरेंट इनलैंड फिशरीज में मोस्टली कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं? एक कटलाज है, रोहू है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मृगाल्स एंड कॉमन कार्प्स। नाउ ये क्या है? 4 डिफरेंट वेराइटीज़ हैं जो इनलैंड फिशरी में इंक्लूड। जो कटला है वो सरफेस फीडर है, और जो हमारे पास रोहू है दैट इज़ लाइज मोस्टली इन द मिडल जोन्स। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द डिफरेंट जोन्स, ठीक है। ये सरफेस फीडर्स में कौन सी आती है हमारे पास? दैट इज़ कटला इन द सरफेस फीडर। सेकंड आते हैं मिडल जोन्स में, दैट रोहू लाइज मोस्टली इन द मिडल जोन्स। और जो मृगाल है और कॉमन कार्प है दैट इज़ डीप ऑन द दैट आर द बॉटम फीडर दैट लाइज डीप इन द पॉन्ड्स। सो जब ये डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, डिफरेंट लेवल्स पे लाई करती हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रिशंस के लिए कंपटीशन नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बी कीपिंग। बी क्या है? हमें हनी कहाँ से मिलता है, वैक्स कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द बी। सो व्हाट इज़ बी कीपिंग? इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग, caring and management of honey bee on large scale for obtaining honey and wax। मीन्स कि बी को रेयर करना, उसकी केयर करना, किसके लिए? फॉर ऑब्टेनिंग honey and wax, that is known as the beekeeping। Now what are the different varieties of the bees? There are 2 Indians and 2 exotic varieties। Indians varieties में Indian varieties Apis dorsata and Apis flora, that are the 2 different Indian varieties। And exotic varieties, or you can say that foreign varieties, Apis mellifera and Apis adamsonis, these are the exotic varieties। Now what quality of the honeys, कि जो हनी है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? बेटर क्वालिटी का हनी हमें कैसे मिलेगा? The quality of the honey for obtaining good qualities and higher yield of honey, कि ज़्यादा मात्रा में हनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी का हनी चाहिए, तो हमें क्या है? देयर आर द फॉलोइंग कंसिडरेशंस आर डन। फर्स्ट इज द पास्चरेज, और यू कैन से फ्लोरा। What is this pasturage? Quality and the taste of honey depends upon the flora। की जो क्वालिटी है, हनी की जो क्वालिटी है या उसका जो टेस्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन द फ्लोरा और पास्चरेज अवेलेबल फॉर द नेक्टर एंड द पोलन कलेक्शंस। कि जो बी हाइव्स है वो कौन से एरिया में है, कैसे एरियाज़ में है, कि वहाँ पे आसपास का जो फ्लोरा है, डिफरेंट वैरायटीज़ के फ्लावरिंग प्लांट्स वहाँ पे अवेलेबल्स होंगे, तो हमें क्या है? गुड क्वालिटी का हनी जो है उससे मिलेगा। सेकंड डिपेंड करता है अपायरी लोकेशंस। अपायरीज क्या होती है? कि जो बीज होती हैं, आपने भी देखा होगा जो बीज किसमें, जो बॉक्सेस में हम उनको कल्चर करते हैं, तो क्या है? आर्टिफिशियल मेथड है बी कीपिंग का। तो अपायरी मीन्स सेटिंग अप ऑफ ए नंबर ऑफ बी हाइव्स। की जो बी हाइव्स हैं, जो बॉक्सेस में जो बी हाइव्स होते हैं, इनको हम कहाँ पे रखेंगे? बी हाइव्स इन अ गुड एंड डिज़ायरेबल लोकेशंस, कि एक अच्छी लोकेशन पे होने चाहिए जहाँ पे क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में नेक्टर्स और पोलन कलेक्शन हो सके। दैट आर द मेथड ऑन विच द क्वालिटी ऑफ द हनी डिपेंड्स। नेक्स्ट आता है द मोस्ट, अब की जो इंडियंस में
जो डोमेस्टिकेट करते हैं, हम कल्चर्स करते हैं, रियर करते हैं। बी की जो वैरायटी है, स्पीसीज है, वो कौन सा है? एपिस मेलिफेरा। द मोस्ट कॉमनली डोमेस्टिकेटेड बी इज एपिस मेलिफेरा। क्यों कहते हैं इसलिए? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज दे हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू विच वी कैन डोमेस्टिकेट द एपिस मेलिफेरा। दैट इज इट इज जेंटल इन नेचर। सेकेंड, गुड प्रोडक्शन ऑफ हनीज, मीन्स ये क्या है? बेटर हनी प्रोडक्शन करती है। एंड द मेन एडवांटेजेस इज द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीजेस, कि इट हैज़ द एबिलिटीज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डिजीजेस। नेक्स्ट we will talk about the caste of the bees. Caste means उसका designations, you can say that they are family members. On the basis of this, there are 3 different family members. First is queen, second drone, and third is the workers. As the name indicate, queens means she is the mother of all the colonies and they lay egg, and their egg laying capacity is 2000 एग पर डे। कि वो क्या है? जो क्वीन होती है वो पूरी जो कॉलोनी होती है उसकी मदर होती है, और उसके वो क्या उसका काम क्या है? दैट ले द एग एंड देयर कैपेसिटी ऑफ लेइंग द एग इज 2000 एग पर डे। इट ले बोथ फर्टाइल एंड अनफर्टिलाइज्ड एग, कि ये क्या है? दोनों टाइप के फर्टिलाइज्ड एग भी ले करती है और अनफर्टिलाइज्ड एग भी ले करती है। एंड दे आर लार्जर इन साइज एंड फीड ऑन द प्रोटीनियस फीड। ये क्या है? जो डाइट है, जो न्यूट्रिशन होता है, दैट इज रिच इन द प्रोटीनियस बिकॉज इट हैज टू ले द एग, और ये सबसे बड़ी होती है साइज में। सेकेंड वी विल टॉक अबाउट, दैट इज सेकेंड मेंबर इज द ड्रोन। ड्रोन, इट इज द हैप्लॉइड fertile male. Haploid means an single chromosome, n number of the chromosome. Haploid fertile male. And what is the main function of that drone? They are larger in size than the worker and are quite noisy. Means ये वर्कर से साइज में बड़े होते हैं, बट एंड प्रोड्यूस साउंड। दे आर स्टिंगलेस एंड देयर रोल इज टू मेट विद द क्वींस। इसका मेन रोल क्या है? मेटिंग विद द क्वींस। एंड द लास्ट, दैट इज द वर्कर। इट इज डिप्लॉयड, ये 2n क्रोमोसोम नंबर है इसका, बट स्टीराइल फीमेल्स। ये क्या है? दैट कांट ले एग्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्टीराइल फीमेल्स। एज द वर्ड इंडिकेट वर्कर्स, तो इसका मेन रोल क्या है? इसका वर्किंग, कॉलोनीज में वर्किंग का काम है इसका। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, ये साइज में क्या है? सबसे छोटी होती है अपनी फैमिलीज में। दे फुलफिल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉलोनीज। कॉलोनीज की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कौन फुलफिल करता है? दैट आर द वर्कर्स। दे लिव ओनली फॉर 3 to 12 months, के जो ये क्या है? मैक्सिमम कितना जो लाइफ स्पैन है, दैट इज अबाउट 3 to 12 months. That's all about this topic. So thank you beta.